Student, I am Savitri Das. Welcome to our Lotus Study Ideas. This video is completely based on NCERT Biology book. In this section, I will discuss about the digestion and absorption chapter. Digestion is a process by which the conversion of a complex food material into the simple observable form by the mechanical and biochemical method. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. देन फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड को हम पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड आता है, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आता है. डाइसैकेराइड को हम ऑल्सो ओलिगोसैकेराइड कहते हैं. मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है मोनो मीन सिंगल यूनिट में जो बनते हैं उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं. ओलिगोस और डाइसैकेराइड मीन्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स मिलके जो बनता है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, उसको डाइसैकेराइड कहते हैं. और देन हमारा पॉलीसैकेराइड मीन्स मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स वी कंसिडर इन द पॉलीसैकेराइड. After the digestion, this polysaccharide is converted into disaccharide and this disaccharide again is converted into monosaccharide. मोनोसैकेराइड में हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आता है. और देन हमारा डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आता है. और पॉलीसैकेराइड में हमारा स्टार्च इन्वॉल्व होता है. और देन वी डिस्कस अबाउट आवर प्रोटीन इज द मतलब made up of amino acid molecule. So when the protein is undergo the digestion, then it is converted into the simple form, that is amino acid form. Then we discuss about our lipid. Lipid is a triglyceride molecule होता है. एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल होता है और जो कि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड को इन्वॉल्व करता है. देन वी डिस्कस अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट्स होता है, एक एलिमेंटरी कैनाल और अनदर वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड. Then we discuss about our alimentary canal. Alimentary canal begins with our anterior mouth region to our posterior anus region. माउथ के बाद हमारा बुकल कैविटी और ओरल कैविटी आता है. देन हमारा फेरिंक्स. देन दिस फेरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू two tubes. One is oesophagus and another one is trachea. And oesophagus is leads to our stomach region, and then it is leads to our small intestine and then large intestine, and last one is anus. And now we see that associated gland is a salivary gland, liver and pancreas. Now we see a diagram which is present in our NCERT biology book. Now here we know that this one is our buccal cavity and this one is our mouth region. And in this case we now discuss about our associated gland, that is a salivary gland, liver and pancreas. वही वाला salivary gland का 3 parts होता है. One is parotid gland, another one is submaxillary gland और another one is sublingual gland. Then we discuss about our this one is our pharynx region, and pharynx is a pharynx divided into 2 tubes. Another is a trachea region, and then one is our oesophagus region. In this case the trachea is here not completed because now we discuss about our digestion मतलब digestive system. So ट्रैकिया को हम रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ेंगे. Here we now see this one is a liver and this one is a gallbladder and this one esophagus is leads to our stomach region.
स्टोमक का बाद हमारा डिओडेनम रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन का है। डिओडेनम के बाद ये हमारा जेजुनम एंड देन हमारा इलियम का रीजन है। यहाँ पर मैं मार्क किया है, ये वाला हमारा इलियम होता है। देन हमारा वी डिस्कस अबाउट आवर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा ये वाला रीजन हमारा सिक्कम होता है और सिक्कम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है, उसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और यहाँ पर हमारा सिक्कम के बाद कोलन रीजन होता है, यहाँ से यहाँ तक कोलन में हमारा असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है, देन हमारा डिसेंडिंग कोलन होता है, देन हमारा सिग्मोइड कोलन, देन हमारा रेक्टम रीजन। रेक्टम के बाद हमारा यहाँ पर मतलब अनस रीजन होता है। This is all about our diagram of human digestive system. Then we discuss about on the alimentary canal in a brief. That is our mouth. Mouth is leads to our buccal cavity, and in this buccal cavity or buccal cavity को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। और बुकल कैविटी और ओरल कैविटी में हमारा नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर टीथ। टीथ का डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटेशन होता है, जिसमें थेकोडंट, डायफाइडंट एंड हेटेरोडंट इन्वॉल्व होता है। वही वाला थेकोडंट उसको क्यों कहता है, टीथ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ एम्बेडेड इन द सकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन में ये एम्बेडेड होते हैं, तो इसीलिए उसको थेकोडंट कहते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट डायफाइडंट। डाई मतलब दो बार जो होता मतलब आते हैं उसको डायफाइडंट कहते हैं। मतलब 2 सेट ऑफ टीथ हमारा होता है। पहले वाला है टेम्पररी मिल्क और आवर डेसिडियस टीथ, एंड देन आवर परमानेंट और अडल्ट टीथ उगता है। Then we discuss about our heterodont. Hetero means a different type of teeth like incisor, canine, premolar and molar region. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के लिए हम डेंटेशन ऑफ टीथ को हेटेरोडंट भी कहते हैं। देन वी नाउ डिस्कस अबाउट आवर डेंटल फार्मूला। हमारा डेंटल फार्मूला डिफरेंट एनिमल के लिए डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर हम ह्यूमन के बारे में मतलब पढ़ते हैं, तो ह्यूमन का हमारा अडल्ट स्टेज में एक होता है और चाइल्ड स्टेट में एक होता है। चाइल्ड में हमारा 2102 ये वाला हमारे इंसिजर के लिए, ये कानाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर का है। हमारा जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा प्रीमोलर टीथ नहीं होता है और मोलर का एक टीथ मतलब विजडम टीथ हमारा नहीं होता है। देन हम अडल्ट हो जाने से वही वाला हो जाता है, प्रीमोलर मतलब 2 आ जाता है और हमारा मोलर रीजन मोलर का 1 मतलब विजडम टीथ हमारा उगते हैं। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। That is a dental formula of adult is 2123 divided by 2123 and child is 2102 divided by 2102. Then we discuss about the teeth. यहाँ पर और एक बात है, that is a teeth is made up of the enamel and which is help for the mastication of the food particle. mastication करने के मतलब वो हेल्प करता है mastication करने के लिए। Now we discuss about our tongue region. Our tongue region is a freely movable muscular organ होता है जो कि अटैच होता है on the floor of oral cavity by the frenulum. It is a मतलब it is a एक important point है that our teeth is attached to our floor of oral cavity by the help of frenulum. Then now we discuss about वही वाला टंग रीजन में एक उसका अपर सरफेस में स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, उसको हम पपीला कहते हैं। और वही वाला पपीला में
टेस्ट बर्ड होते हैं। मतलब पैपिला का बहुत सारा डिवीजन होते हैं, मतलब एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में नहीं था तो मैं यहाँ पर उसको स्किप कर दिया हूँ। जो जो एनसीईआरटी में है वही वाला मैं डिस्कस यहाँ पर करती हूँ। और यदि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्स्ट्रा वाला लेक्चर लगा दूँगी। Then we discuss about pharynx region. Our pharynx is the common passage for food and air. And then our oesophagus. Oesophagus is the long thin tube which is extend posteriorly and passes through our neck or thorax or diaphragm region. Oesophagus our thin region or a long tube which is passes through our neck region, then our thorax, then our diaphragm. Now we discuss about our trachea. Our ट्राकिया रीजन, ट्राकिया का मतलब यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है इन ब्रीफली, बिकॉज ट्राकिया के बारे में हम रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्राकिया इज़ अ विंड पाइप होते हैं, वही बात मतलब यही यहाँ पर आप समझ लो। और नेक्स्ट मतलब रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर में इसका ब्रीफ डेफिनेशन होगा। देन लीड्स टू द स्टोमक रीजन। स्टोमक इज ए जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और लोकेटेड होता है हमारा अपर लेफ्ट पोर्शन में ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। एंड देन इट हैज़ द 4 पार्ट। ये मतलब कार्डियक, आवर फंडिक, आवर बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। वही जो कार्डियक रीजन होता है ना, स्टोमक हार्ट के पास, मतलब स्टोमक का एक रीजन, जो रीजन हार्ट के पास में होता है उसको कार्डियक रीजन कहते हैं। और यहाँ पर और एक पॉइंट है जिसमें है, इट इज़ अ पोर्शन इनटू व्हिच द ओएसोफेगस इज ओपन। दैट्स मीन ओएसोफेगस इज ओपन्स इनटू द स्टोमक रीजन बाय द कार्डियक साइड में हमारा ओपन होता है। देन हमारा वी डिस्कस अबाउट आवर फॉन्डिक रीजन, देन बॉडी एंड देन लीड्स टू ए पाइलोरिक region. Pyloric region is the portion into which the first part of the small intestine is open. Then we now discuss about our gastroesophageal sphincter. It is a main important things, that is a muscular or sphincter, and it is a very important point, that is it regulates the opening of oesophagus. ओएसोफेगस को ये ओपनिंग को ये रेगुलेट करते हैं। और स्पिंचर इज ए टाइप ऑफ organ by which it prevent the backward flow of the food. बैकवर्ड फ्लो को ये प्रिवेंट करता है, मतलब जो आ गया है वो मतलब वो नहीं जा पाएगा फिर से। Then we discuss our small intestine. It has the 3 parts, that is duodenum, jejunum and then ileum. duodenum एक C शेप है, हमारा स्टोमक यहाँ पर था J शेप का। यहाँ पर ओवरलुक करने से हम जान जाएंगे। देखो ये स्टोमक हमारा J शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर था और यहाँ पर डिओडेनम हमारा C शेप है। ये बात को याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग घबरे जाएंगे क्योंकि कौन सा C शेप है कौन सा J शेप है। और यहाँ पर जेजुनम इज़ ए लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर होता है। देन इलियम इज़ अ हाईली कॉइल स्ट्रक्चर एंड ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन रीजन। आवर पाइलोरिक रीजन इज opens to our first part of the small intestine region, and our cardiac region is a portion open into the oesophagus region. Oesophagus is opens to our cardiac region, and यहाँ पर और एक बात है, that is इलियम इज ओपन इनटू आवर लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ओपनिंग में है हमारा पाइलोरिक रीजन, और कार्डियक रीजन
रीजन में ओइसोफागस का ओपनिंग, मतलब ओइसोफागस ओपनिंग होता है, और यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब इलियम लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग में होता है. देन वी डिस्कस अबाउट आवर पाइलोरिक स्पिंचर. इट इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द डिओडेनम रीजन. यहाँ पर और एक स्पिंचर था, मतलब गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंचर, एंड और एक है दैट इज पाइलोरिक स्पिंचर. Then now we discuss about our large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है. दैट इज अ सीकम, that is a small blind like structure which is a host some symbiotic microorganism, and इसमें हमारा विटामिन B12 का भी प्रोडक्शन होता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब वो शो करता है, वही वाला एक मेन पॉइंट है. देन वी डिस्कस ए नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. उसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो मैं पहले डायग्राम में आपको दिखा चुकी हूँ. विच इज अ वेस्टिजियल organ and arises from the cecum region. Then we discuss about colon. Colon is a 4 part, that is ascending colon, transverse colon, and our descending colon. And descending colon is open into our rectum region, then our sigmoid colon. Then we discuss about a rectum region. The descending colon is open into our rectum region, which is opens due to the opens out through the anus, and anus is the last part of the digestive system. Thank you so much, and this is the complete lecture for the alimentary canal. And in the next lecture we will discuss about our associated gland.